Salam to all. Last time, what was our topic? Yes. So our topic was business ownership. Yes, and we discussed about the corporation and cooperatives. So I'm going to show you one clip based on this corporation and cooperative. सो आपको ध्यान से समझना है ये क्लिप के बारे में, उसके बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं. Corporation. A corporate structure is more complex than other business structures. Unlike the previous two, business ownership, a corporation is a business organization that is considered a separate entity from its owners and pays its tax separately. The owners of the business are called shareholder. They hold stock in a company and reap the benefits of the company's successes in the form of an increased value of stocks. The shareholders elect a board of directors who set the policy and vision for the corporation. The board of directors appoints corporate officers who run the day-to-day operations of the corporation. Corporations attract investors because shareholders of the corporation have limited liability. That is, creditors can only claim the assets of the corporation and not the personal assets of the stockholders for the settlement of the corporation debts or liabilities. Shares of the ownership are transferable, so the corporation continues to exist even if the management changes. However, starting a corporation is costly. Moreover, corporations are highly regulated by laws, and dissolving such a business involves a complicated legal process. For example, the Walt Disney Company and Johnson & Johnson are among the 5 most successful corporations in the world. These companies have a strong financial history, provide products and services that benefit society, and have been able to survive over a long period of time. Cooperative. Cooperative is an enterprise or an organization that is owned and managed jointly by those who are its members. It is democratically controlled and operated on a non-profit basis. The basic objective of such an organization is to meet the economic, social, and cultural needs of its members. It should have a maximum of 10 members, but there is no limit to the maximum number of members. They contribute capital to the organization and reap the benefits. The liability of members is limited to the extent of their capital in the cooperative society. The managing committee is elected by the members to run the organization. A cooperative mainly aims at providing services in place of earning profits. They need to be registered with the Registrar of Cooperative Societies. Formation of a cooperative society is easy. A cooperative society is a separate legal entity. Hence, the death, bankruptcy, retirement, etc. of the members do not affect the continuity and existence of a cooperative society. It is also exempted from income tax. Moreover, the government offers loans and financial assistance to cooperative societies. On the other hand, it is quite difficult for a cooperative to maintain the secrecy of its business affairs because it has to report to the Registrar of Cooperative Societies.
Lack of profit motive may breed inefficiency, fraud, and corruption in the management. For example, the best example of the cooperative form of business model is Amul. It has protected the interest of the milk producing farmers who are its suppliers as well as its owners. Amul is the largest cooperative movement in India with 2.2 million milk producers. There are 38,000 crores successful business entities which supply products to over 40 countries and provide livelihood to crores of individual dairy farmers in Gujarat and the rest of India. Students. Another example is the Shri Mahila Griha Udyog Lichit Papad. It is an Indian women's cooperative involved in the manufacturing of various fast moving consumer goods. The organization's main objective is the empowerment of women by providing them with employment opportunities. It started with a loan of mere 80 rupees, and now the cooperative has an annual rate of more than 301 crores. That is 3.1 billion. The choice of the type and form of your business needs a lot of consideration. It involves assessing your financial resources, taking inbuilt risks, and considering your preparedness. It also depends on the purpose of the business, who you want to involve as business partners and as beneficiaries. So, what is the basic difference between the corporation and cooperative? आपने जो अभी क्लिप समझा है उसमें कोई बताएगा आपको क्या डिफरेंस समझ में आया? What is the difference between corporation and cooperative? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आई बिलोंग्स टू देवास. आप में से कोई बताएगा देवास इज फेमस फॉर? देवास किसके लिए फेमस है? एनीवन? देवास इज फेमस फॉर? Sir, देवास money is manufactured there. देवास इज फेमस फॉर Textile industry. Devas is famous for there is a currency making company. ठीक है. नोट छापने की फैक्ट्री है देवास में, दैट इज नोन एज बैंक नोट प्रेस. सो माय फादर वर्कड इन बैंक नोट प्रेस and the government gave the VRS to my father in 2012 voluntary retirement scheme, and around 400 people gave VRS voluntary retirement scheme in banknote press. So Devas is famous for the currency making, and second Mata Tekri is there, and third Devas is very industrial city. अभी पीथमपुर है. पीथमपुर से पहले देवास में काफ़ी इंडस्ट्रीज थी, तो देवास में पानी की वजह से काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो गई. ठीक है. तो इंदौर से करीब 40-50 किलोमीटर के आसपास पीथमपुर है. पीथमपुर इज नाउ डेज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ आवर मध्य प्रदेश. अभी भी काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं देवास में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं. टाटा की फैक्ट्री है, रैनबैक्सी है. ठीक है. एंड दिस बैंगनोट प्रेस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर ऑन नेशनल लेवल. तो हम लोग बैंगनोट प्रेस जो प्रीमाइसेस है, जैसे आप लोग गेल प्रीमाइसेस आपने देखा है, वैसे ही वहाँ पे बैंगनोट प्रेस का एक प्रीमाइसेस है. वहीं पर केंद्रीय विद्यालय है, वहीं पर इसी तरह का
ब्लॉक्स भी बने हुए हैं, है ना, रहने के लिए घर भी वहीं बने हुए हैं। तो बैंक नोट प्रेस पहले पूरा गवर्नमेंट सेक्टर था, अभी उसको बना दिया गया है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, पूरी तरह से उस पर गवर्नमेंट के रूल्स थे, तो देर इज नो सच प्रॉफिट मेकिंग फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट का इंटेंशन सिर्फ ये था कि ज्यादा से ज्यादा करेंसी छापना वहां से, है ना। दे वांट दैट लॉट्स ऑफ करेंसीज टू बी प्रिंटेड। तो वो उनका गवर्नमेंट का मोटिव था, पर गवर्नमेंट ने देखा कि वहां पर काफी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। उस टाइम पे जब माय फादर वर्क इन बैंक नोट प्रेस, तो उस टाइम पे करीब 2500 एम्प्लॉयज थे, और वहां पे पूरी सारी मशीन्स जो है वो सारा वर्क करती हैं। तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि वहां तो सिर्फ 500 अगर वर्कर्स हों तो भी वहां पे काम चल सकता है, क्योंकि वहां पे सारी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे वहां पे जो नोट बनाने का जो पेपर आता है, आपने वो पेपर वो मशीन में ऐसा फिट कर दिया, तो मशीन से वो पूरा नोट जो है वो पूरा 2-3 स्टेजेस में प्रिंट होके पूरा बंडल होके, और फाइनल आउटपुट आपको ऐसी गड्ढे मिल जाती है नोट की। सो देर इज नो रोल ऑफ द एम्प्लॉयज इन इस तरह की 2-3 मशीन वहां पे लगी हुई हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि उन्होंने वहां पे स्टार्ट करा कि दैट दे वांट टू गिव द रिटायरमेंट स्कीम टू द एम्प्लॉयज, और वहां से करीब उन्होंने 400 पीपल को एक साथ दिया था वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। एंड द गवर्नमेंट इज कन्वर्टेड दिस बैंक नोट प्रेस इनटू अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मीनिंग ये था कि प्रॉफिट अर्न जहाँ से होगा हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज कम कर दिए उन्होंने। एम्प्लॉयज कम करने के साथ उन्होंने क्या करा, वहाँ पे वर्कलोड बढ़ा दिया है अब, ठीक है। इसी तरह से बीएसएनएल है। पहले बीएसएनएल जो था वो डॉट करके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करके उसको बोला जाता था, है ना। अब फिर उसको कन्वर्ट कर दिया बीएसएनएल में। बीएसएनएल का मतलब उसको कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया, ओके। सो कॉर्पोरेशन में करने से क्या होता है कि उन पे उनका जो मेन अचीव रहता है कि दे वांट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दोज ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड जो बता रहे हैं इसमें कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि उनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। दे वांट टू गिव बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। जैसे उसमें एग्जांपल दिया है कि लिज्जत पापड़ है, अमूल डेयरी है, ठीक है। दे वांट टू गिव बेटर सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। सेकंड इसमें दिया है कॉरपोरेशन का, कि कॉरपोरेशन में द कंपनीज आर गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट में उनका नेम आता है। स्टॉक मार्केट में उनका नेम आने के बाद उनके शेयर की प्राइसिंग होती है, ठीक है। और उनके शेयर्स भाव कम ज़्यादा होते रहते हैं, कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट अर्न होता है। पर आपने देखा होगा अमूल अमूल और ये इस तरह की जो कॉपरेटिव्स हैं, लिज्जत पापड़, वो आपने स्टॉक मार्केट में इनका नाम नहीं सुना होगा कि किसी ने अमूल के शेयर खरीदे हैं, किसी ने लिज्जत पापड़ के शेयर खरीदे हैं, ऐसा आपको सुनने में नहीं आता होगा ना। सो दिस इज द टू थ्री डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेटिव। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म हो गया। अभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। दैट दिस यूनिट नंबर 4, I am going to open the PDF of this.
पीडीएफ ओपन होने में टेक्स अराउंड फ्यू सेकेंड्स। अच्छा चलिए, जब तक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हर स्टूडेंट अपने सोच के बताएगा कि ये कोरोना कितने महीनों में चले जाएगा। चैट बॉक्स में मंथ्स के नेम टाइप करिए कि कोरोना कितने मंथ्स में चले जाएगा। what is your opinion? How many of you think कि कोरोना 2 महीने में चले जाएगा, कोरोना 3 महीने बाद चले जाएगा, या 4 महीने बाद उसकी वैक्सीन आ जाएगी? एवरीवन हैज टू अज्यूम, कुछ अज्यूम करिए आप, कुछ ना कुछ सभी। एवरीवन हैज टू रेस्पॉन्स टू माय क्वेश्चन। Okay, so most of the students are in favor of that 2021 में ये कोरोना चले जाएगा, 1 साल लगेंगे कम से कम। ओके, यस, ठीक है। सो पीडीएफ इज ओपन नाउ एंड देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी आर ऑन यूनिट नंबर 4, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये अभी हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 15। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, दैट इज 1 2 3। वंस अगेन, कोई आप में से कोई रिमाइंड कराएगा कि अब हम एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 16 पे आ रहे हैं? सो एनीवन विल रिवाइज वेरी सिंपल टॉपिक्स। कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? सी, दिस चैप्टर इज बेसिकली डिस्कशन बेस्ड। हम जितना अच्छा डिस्कशन करेंगे, आप जितना अच्छा बोलेंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? Sir, who had their own business. या Person having own business. हाँ, तो आपको बोलना है, ये जो चैप्टर्स चल रहे हैं ना, दे आर मोस्टली डिस्कशन बेस्ड। आप जितना अच्छा डिस्कस करेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, उतना अच्छा आपको याद रहेगा, ठीक है? सो चलिए, कोई बताएगा, गिव वन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। Mark Okay. Zuckerberg, J.K. Yes. Rowling. Jeff Okay. Bezos, Jeff Bezos, Walt Yes. Walt Disney. ओके, यस, ठीक है। सो नाउ आपने अच्छा बताया, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन बताई, आपने एग्जांपल्स बताए एंटरप्रेन्योर्स के, ठीक है? नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। So once again I will show you a clip. आपको फिर से क्लिप समझना है, उसको सुनना है ध्यान से, और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। Hello, students. Today we will talk about characteristics of entrepreneurship. An entrepreneur is a person who undertakes a new business or venture with some potential for profit and involving a certain amount of risk. Entrepreneurship is the act of setting up a business and taking on financial risk with the goal of making profit. Let us read about some famous entrepreneurs
who have succeeded despite odds. They were successful because they had unique ideas, and more importantly, they had the necessary talents and skills that made them legendary entrepreneurs. For example, Bill Gates, the founder of Microsoft, and the late Steve Jobs, the founder of Apple, were college dropouts. But the key to their immense success was embedded in their innovative ideas and their ability to persist even during difficult times. Even Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, as well as Larry Page and Sergey Brin of Google, can be considered as truly great entrepreneurs. Can you guess what do all these legends have in common? They had the vision and the sense of mission that they were going to change the world with their hard work, perseverance, and sheer determination. Students, let's know more that every big business has to start somewhere. You will be surprised to know that some of the very successful global businesses began from a garage. Find out the names of at least six big business companies in the world that started from garages and rose to be a multi-million or billion-dollar industries. Let me tell you the story of Bill Gates. We all know Bill Gates as one of the pioneers of modern computers. He is one of the richest and most influential people in the world today. Bill Gates, along with his partner Paul Allen, founded and built the world's largest software business, Microsoft, through technological innovation, keen business strategy, and aggressive business tactics. It will be interesting to know a little more about his early years. As a young boy, Bill was fond of board games, especially Monopoly and Risk. Bill developed an interest in computers in school and wrote his first computer program as a young teenager. While still in high school, Bill, along with some of his friends, wrote a payroll program for a company and a scheduling program for his school. Bill Gates and his friend Paul formed a venture called Traf O Data while still in high school. They created a computer program that helped to track traffic patterns in Seattle. He started his business from the garage in his house. Later, along with Paul Allen, he established Microsoft in 1975. Now let us learn how to develop entrepreneurship. What do you do to perform well in school or to excel in examinations? You join coaching classes or institutes to score well in studies. In addition to academic coaching, many students join English communication courses and personality grooming institutions. The aim is to develop skills to enhance one's personality and be successful in life. In the same way, to develop and improve entrepreneurial abilities, an individual requires specific training and classroom programs. Thus, we can say that entrepreneurship development refers to the inculcation, development, and polishing of entrepreneurial skills in a person to enable him to establish and successfully run an enterprise. All successful entrepreneurs like Bill Gates, Microsoft, Warren Buffett, Hathaway, Gordon Moore, Intel, Steve Jobs, Apple Computers, G.D. Birla, and Jamsetji Tata went through the process of enhancing their skills through early business opportunities and later by sharpening their business skills, understanding the market needs, and capitalizing on them. Students know the fact. The Government of India has many schemes to promote new ideas and support entrepreneurs. Startup India is a government campaign aimed at promoting bank financing for startup ventures to encourage entrepreneurship and startups, which will contribute to the economy of the country. Stages in entrepreneurship. सो अभी आपने बिल गेट्स की स्टोरी के बारे में थोड़ा सुना है यहाँ पे, ठीक है। अब और some characteristics are also defined of entrepreneurs,
अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो बताएगा कि उसके पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा, सिर्फ स्टडी के अलावा उसमें क्या स्किल है उस पे ज़्यादा प्रमोट करते हैं? आप में से किसी के पेरेंट ऐसा हैं जो ऐसा बोलते हो कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जो स्किल है उस स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं उनके पेरेंट्स? क्या आप में से किसी के पेरेंट ने आपकी कोई स्किल ऐसी वॉच कर रखी है, ऑब्जर्व कर रखी है, और वो आपकी स्किल्स को कितना प्रमोट कर सकते हैं उसी पे ध्यान देते हैं? ओके, वन स्टूडेंट इज हियर हु रेज देयर हैंड. एनी अदर स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स ये देखते हैं कि पढ़ाई तो ठीक है? ओके, वन मोर स्टूडेंट. इसके साथ साथ में आप और एक्स्ट्रा क्या लर्न कर रहे हैं? व्हाट यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा स्किल्स इन यू. तो उनके पेरेंट्स का उन यस, ओके, यस. सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर जिनके पेरेंट्स स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड दे नो दैट पढ़ाई तो चलती रहेगी बट यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स साइमल्टेनियसली, है ना? तो में एक इंस्टीट्यूट है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जानते होंगे उस इंस्टीट्यूट के बारे में. द इंस्टीट्यूट नेम इज नोन एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM. तो उसमें ऐसा बताते हैं कि IIM में आप जब तक आप सिलेक्ट होते हैं, उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी टफ होता है. देर आर 5 और 6 इंस्टीट्यूट्स ऑफ IIM इन ऑल ओवर द इंडिया, और कुछ एक दो और शायद ओपन हो गए होंगे. तो एक तो उसकी रिटन एग्जाम बहुत टफ होती है, उसके बाद उसका GD होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, और जब जाके आप उसमें IIM में सिलेक्ट होते हैं तो वो बताते हैं उसमें कि IIM की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी टफ है, लेकिन जब आप एक बार एंट्री कर लेते हैं तो आप इतना लर्न करके वहां तक पहुंचते हैं कि वहां पर फिर क्या करते हैं, आपके पूरे जो 4 साल है IIM, मतलब जो भी 3 साल का कोर्स होता होगा, 2 साल का, उनका पूरा फोकस जो रहता है वो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए वो पूरा इंस्टीट्यूट आपको कोशिश करते हैं. वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो रिसर्च करते हैं. मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि मैं आई बिलोंग टू देवास एंड आई वाज इन बैंक नोट प्रेस कॉलोनी, हमारी BNP कॉलोनी कहा जाती थी, और वहाँ पे जो पूरा देवास डिस्ट्रिक्ट है, तो देवास डिस्ट्रिक्ट क्योंकि वो एक पूरा सिक्योर प्लेस है, मतलब बैंक नोट प्रेस क्योंकि करेंसी वहाँ पे छपती है, प्रिंट होता है, तो वहाँ पे जिस तरह से गेल में आप देखते हैं थोड़ा सिक्योरिटी है, वहाँ पे BNP में और भी ज़्यादा सिक्योरिटी है. तो वहाँ का गेल वहीं पे BNP के अंदर ही पोलिंग बूथ रहता है. पूरे डिस्ट्रिक्ट का पोलिंग बूथ जो रहता है वो हमारे प्रीमाइसेस में था. तो देवास डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होते तो वहाँ पर आके पूरी काउंटिंग होती थी, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सिक्योर एट दैट टाइम. तो अभी भी वो BNP को ही उन्होंने क्या कर रखा है कि पोलिंग वहाँ पे चुनाव के जितने भी होते हैं वो रिजल्ट्स वहीं पे आके, सारी मशीन्स जो आके वहीं पे कलेक्ट होती हैं, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. तो वहाँ पे IIM के स्टूडेंट्स आए थे हमारे सामने, और IIM की वहाँ से उनको व्हीकल उन्होंने दिया था, और वहाँ के स्टूडेंट आके उनको एक स्पेशल परमिशन दी गई थी कि कैसे वहाँ पे पूरा जो है मशीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, पोलिंग मशीन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, काउंटिंग कैसे होती है. तो वहाँ को उनको IIM के स्टूडेंट्स को परमिशन दी गई थी, और वो पूरे वहाँ पर उसके अंदर बैठे हुए थे, और उन्होंने उस पूरी जो सिस्टम था उसको समझा था. तो इस तरह से IIM की जब इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने से उनको कुछ बहुत सारे नए आइडियाज आते हैं, ठीक है, और जब वो किसी एक पूरे सिस्टम को समझ लेते हैं तो वो खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है. इसी तरह का IIT भी होता है, बट IIT का मेन फोकस जो रहता है वो इंडस्ट्रियल्स में जाने का जो रहता है, ठीक है. IIM
ये जो रहता है बेसिकली उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वो एंटरप्रेन्योर बन सकें, उसकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है पूरे। ठीक है, आईआईएम के बंदे को आप कहीं पे भी खड़ा कर दीजिए, कोई भी एक टॉपिक दे दीजिए, वो वहाँ पर किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, उनका जनरल नॉलेज इतना स्ट्रांग होता है आईआईएम के स्टूडेंट्स का। तो अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया, दैट इज बिलोंग टू अ हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और वो एक आईआईएम का मैंने एग्जांपल दिया आपको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कैसे, अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या हैं। ठीक है, सो let us come on to this topic and one by one. Yes, हाँ, so there is one example, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि कैसे व्हेन आई वाज इन इंदौर, तो मैंने इंदौर में देखा है कि मैंने अपने सामने एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखा है। द पर्सन वाज टेकिंग क्लासेस इन अ गैरेज। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास में गैरेज था, और उस गैरेज में उन्होंने अपना एक कोचिंग खोला था। द कोचिंग इज फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। वो एमबीए के स्टूडेंट्स को, आईआईएम के स्टूडेंट्स को वहाँ पे पढ़ाते थे, और वहाँ से उन्होंने, वो उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना फेमस हुआ, द कोचिंग इंस्टीट्यूट बिकम्स द प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स। उन्होंने उसका नाम रखा पीटी, प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स। तो इंदौर में सबसे पहले बहुत ही सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट था प्रोफेशनल लेवल पे, जो आईआईएम के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते थे। ठीक है, पीटी के साथ फिर दूसरे, बहुत बाद में दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आए, जब तक पीटी जो है काफ़ी अपनी ब्रांचेस जो हैं दूसरी सिटीज़ में लॉन्च कर चुके थे। सो आई हैव सीन दिस इंस्टीट्यूट and it become a successful entrepreneur, and the person also from मुझे उनका बैकग्राउंड तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि, बट ही इज बिकम नाउ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्या आप में भी किसी ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखा है, आप में से किसी ने, जो अपने आसपास एरिया में हो और जिन्होंने अपने लेवल पे कुछ कर दिखाया हो? एनीवन वांट्स टू शेयर? यस, नकुल आप शेयर करिए। हाँ नकुल, आप बताइए क्या बताना चाहते हो। क्या हो, ठीक है, नकुल के अलावा और कोई शेयर करना चाहता है? ठीक है, सो हाँ सृष्टि आप शेयर करिए। Sir, my mother's friend was having one small shop of clothes, but now he is having a big showroom of clothes. वेयर? Sir, in Ashok Nagar. ओके, अच्छा, Sir, and he is having one jewelry shop also. ओके, यस, यस। तो आप सभी ने ऐसे इस तरह के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स देखे होंगे अपने एरिया में, है ना। तो व्हाट आर द स्टेजेस, व्हाट आर द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, सो द स्टेजेस आर, आई एम गोइंग टू रीड सम ऑफ द पॉइंट्स एंड देन वी विल डिस्कस। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट, लाइक अगर आपको अभी बोला जाए कि ठीक है, नहीं अब आप अपनी पढ़ाई बंद करिए, ठीक है, और अब आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है,
तो अब आप क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या सोचेंगे? आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया है कि अब आप अपनी पढ़ाई बंद कर दो, हम आपको पूरी मनी जितना भी है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आप अपना बिजनेस स्टार्ट। अब आप किसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्या करना, आपको क्या सोचना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस एरिया में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड कि हम किस एरिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना? सो यू हैव द फर्स्ट डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पहला है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम किस एरिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेकंड दिया है दैट आपको डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान, एक पूरा आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर आपने कोई सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, यू हैव सिलेक्टेड वन एरिया, यू हैव सिलेक्टेड वन फील्ड जिसमें आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका पूरा आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम किस रीजन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, आप अपने बिजनेस को कैसे ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट मीन्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, भोपाल से, इंदौर से, आप अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उसको आपको किस कहाँ कंफर्टेबल, आप कहाँ से हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। देन you need the management of the resulting, you need some of the people who help you in your business, and the last one is change or adapt with the time। आपने शायद हो सकता है कुछ सोचा हो लेकिन फिर कुछ और आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, अब सपोज जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, हो सकता है कि शायद जनवरी फरवरी में किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा हो, ठीक है, अब कोरोना काल की वजह से उसको क्या करना पड़ रहा है, अडेप्ट करना, कुछ ना कुछ उसको चेंज करना पड़ रहे होंगे अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी में। तो ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेंगे। ठीक है, सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ in our next class we will continue with what are the factors affecting entrepreneurship growth। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, वो फैक्टर्स हमको डिस्कस करने हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, आई शो यू दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बिल गेट्स की आपने कुछ शॉर्ट स्टोरी देखी, उसमें आपको बताया गया है। एंड देन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एक दो एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। इफ यू हैव एनी डाउट, हाँ, उसके पहले हमने स्टार्टिंग में डिफरेंस देखा था कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव। किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। Okay, then all of you join your hands. Om Shanti Shanti Shanti। Sairam, Sairam sir. Sairam sir. Sairam, Sairam sir. Sairam sir. Sairam, Sairam, Sairam sir. Sairam, Sairam, Sairam sir. Sairam। सर Yes, सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर,